السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا اردو ٹیچ چینل میں آپ سبھی کا خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل اقرا اردو ٹیچ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیو کا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈپٹی نذیر احمد، جن کا آپ کی کتاب میں مضمون ہے وقت، اس سے متعلق پڑھیں گے۔ مضمون وقت پڑھنے سے پہلے ہم ڈپٹی نذیر احمد پر ایک سرسری نگاہ ڈالتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد اتر پردیش کے ضلع بجنور 1831 تحصیل نگینہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں ریہڑ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ نذیر احمد کی تعلیم بجنور، مظفر نگر اور دہلی میں ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم یعنی اونچے تعلیم کے لیے دلی کالج میں ہوئی، جو اب ذاکر حسین کالج کے نام سے مشہور ہے۔ 1854 میں تعلیم سے فراغت کے بعد انہوں نے پنجاب کے ایک مدرسے میں مدرسی کا پیشہ اختیار کیا، یعنی ٹیچر بن گئے۔ انگریزی حکومت نے ان کی خدمات کے اعتراف میں، یعنی اچھے کام کرنے کی وجہ سے، انگریزی حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا تھا۔ 1902 عیسوی میں ایڈنبرا یونیورسٹی نے LL.D کی ڈگری تفویض کی، یعنی نافذ کیا۔ ڈپٹی نذیر احمد ترجمہ نگار، ادیب، ناول نگار اور مقرر بھی تھے۔ اردو ادب میں ان کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ مرآت العروس، بنات النعش، توبۃ النصوح اور ابن الوقت ان کے اہم ناول ہیں۔ ان کے ناول حقیقت پسندی اور اخلاقی تربیت اور دلچسپ کرداروں سے بھرپور ہے، لہجہ پرجوش اور اثر انگیز ہے۔ وقت، مشکل الفاظ کے معنی۔ الفاظ معنی: تلافی، نقصان کی بھرپائی، تاکید، زور ڈالنا، کسل، سستی، فکر معاش، روزی کی فکر، خواب و خور، حرام کرنا، کھانا پینا، سونا مشکل ہو جانا۔ تشبیہ، تشبیہ دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتانا۔ غبی، کند ذہن، سراغ، پتہ، نشان۔ صد آفری، بہت بہت شاباشی۔ اعتدال، نہ کم ہونا نہ زیادہ ہونا، بیچ کا راستہ۔ ملول ہونا، اکتانا یعنی اکتا جانا۔ دی روزہ، گزشتہ کل۔ بے ثباتی، ٹھہراؤ نہ ہونا، قائم نہ رہنا، مٹ جانا۔ مبتلا، پھنسا ہوا۔ ہر دل عزیز، سب کا پیارا۔ فراغت، فرصت۔ صرف کرنا، خرچ کرنا۔ کسب، حاصل کرنا۔ حواس، ہوش، رائگاں، بیکار۔ طبع، آزمائی کرنا، کوشش کرنا۔ صدہا، سینکڑوں۔ خار، ذلیل۔ شغل، مشغلہ، مصروفیت۔ سود مند، فائدہ مند۔ گاہنا، اناج پر بیلوں کو پھرانا تاکہ بھس الگ اور اناج الگ ہو کر صاف ہو جائے۔ بار، بوجھ۔ مذکور، جس کا ذکر کیا گیا۔ عہدہ برآ ہونا، ذمہ داری پوری کرنا۔ لازم، ضروری۔ سبق کا خلاصہ۔ مصنف نذیر احمد کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کی تلافی ہو سکتی ہے مگر وقت کی نہیں، کیونکہ جو گھڑی گزر گئی وہ کسی طرح لوٹ کر نہیں آ سکتی ہے۔
सुबह से शाम तक वक्त किस तरह गुजर जाता है मालूम ही नहीं होता। वक्त से ज़्यादा तेज़ रफ्तार कोई शय यानी चीज़ नहीं। सुबह से शाम तक हम 24 घंटे का हिसाब लगाएं तो हम देखेंगे कि वक्त यूं ही गुजर गया और कोई मुफीद काम नहीं किया। इसलिए शायर ने कहा, सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है। लेकिन हम डिप्टी नज़ीर अहमद के रूह को तकलीफ़ देते हुए इस शेर के अंदर तरमीम करते हैं, सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही फेसबुक व्हाट्सएप पर तमाम होती है। हमें वक्त की कदर करनी चाहिए और वक्त को अच्छे कामों अच्छी बातों में सर्फ करना चाहिए ताकि हम आलिम फाजिल लायक हुनरमंद बन सके, कामयाब और नेक नामी की ज़िंदगी गुजार सके। नज़ीर अहमद लड़कों से कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी वक्त है उसे गनीमत समझो। उस वक्त तुम्हें खाने की फिक्र है न कपड़े की सोच। तुम्हें जो कुछ बनना है उसके लिए अभी से लग लिपट जाओ। तुम जवानी और बुढ़ापे में नहीं सीख सकते, ये लड़कपन है, उसी में आदमी सब कुछ सीख सकता है और हासिल कर सकता है। जिस तरह किसान सही वक्त पर खेत जोतता और बीज बोता है, उसी तरह तुम्हें लड़कपन में सीखना है। यही घड़ी है यानी यही वक्त है जब तुम्हारे पास सीखने के लिए ज़्यादा वक्त है। तुम बड़े हो जाओगे और कुछ नहीं सीखा तो बड़े होकर पछताना पड़ेगा। ये मत समझो कि अभी बहुत वक्त है, सीख लेंगे, कल क्या हो किसने देखा है। आदमी की तंदुरुस्ती भी एक जैसी नहीं रहती। किताबें पढ़ने में खूब वक्त गुजारो, पढ़ते पढ़ते उकतार आ गए तो दूसरे मजमून की किताब पढ़ो ताकि तबीयत में उकताहट न आए। रात को सोने से पहले ये सोचो तुमने आज कौन सी नई बात सीखी। अगर मालूम हुआ कि नहीं सीखी तो फिर आज का दिन ज़ाय हो गया। इसलिए उसकी तलाफ़ी के लिए अगले दिन ज़्यादा सीखने की कोशिश करो। किसी ने सच कहा है कि किसी शख्स का एक दिन दूसरे दिन जैसा गुजरा तो उसने कुछ तरक्की नहीं की बल्कि वह घाटे में रहा। मश्की सवालात व जवाबात। सवाल नंबर 1, दुनिया में वक्त की तलाफ़ी क्यों मुमकिन नहीं है? गया वक्त फिर वापस नहीं आता। जो घड़ी गुजर गई वह पलट कर नहीं आती, इसलिए उसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं है। सवाल नंबर 2, वक्त ज़ाय करने से इंसान किस किस्म के हालात से दो चार हो सकता है? वक्त ज़ाय करने से इंसान किस किस्म के हालात से दो चार हो सकता है? वक्त ज़ाय करने से इंसान हमेशा नुकसान में रहता है और पछताता है कि उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। अगर वक्त पर काम किए होते तो किस कदर हुनरमंद, लायक, नाम और हर दिल अजीज़ होते। जो काम करने, कुछ सीखने और समझने का था, उसे खेल कूद और फजूल कामों में गंवा दिया और अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर ली। सवाल नंबर 3, वक्त के सही इस्तेमाल से इंसान में क्या खूबियाँ पैदा होती हैं? वक्त के सही इस्तेमाल से इंसान में क्या खूबियाँ पैदा होती है? जवाब, वक्त के सही इस्तेमाल से इंसान लायकमंद, आलिम, फाजिल बनता है। वह जो पेशा इख्तियार करता है उसमें उसे कामयाबी मिलती है। उसके पास पैसा भी होता है और सेहत भी, क्योंकि उसने दिन भर के कामों के लिए वक्त मुकर्रर कर रखा है और उसके मुताबिक काम अंजाम देता है। जो बच्चे वक्त की कदर करते हैं, वक्त पर पढ़ते लिखते, सोते जागते और खाते पीते हैं, वक्त भी उनकी कदर करता है, उन्हें नेक और हर दिल अजीज़ बना देता है। खाली जगहों को भरिए। सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद बनाइए। अल्फाज मुतज़ाद: पीरी जवानी, लायक नालायक, जाहिल आलिम, सुस्त चुस्त, दाई
बुराई, खसारा, फ़ायदा। अमली काम। इस सबक को पढ़ने के बाद आप सुबह से शाम तक अपना वक्त कैसे गुजारेंगे, थोड़ा इस पर भी एक सरसरी निगाह डालें। हम देखते हैं कि स्कूल में जितनी भी क्लासें हैं उनका अपना अपना टाइम टेबल है, हर मजमून के लिए अपना टाइम टेबल है। उसी वक्त उस्ताद क्लास में आकर पढ़ाते हैं। हमें स्कूल के अलावा सुबह से शाम तक तमाम कामों का एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि स्कूल जाने से पहले स्कूल की तैयारी, नाश्ता करके वक्त पर स्कूल पहुँचे, स्कूल से वापसी पर दोपहर का खाना खाकर कुछ देर आराम करें और फिर अगर कुछ खेलना चाहे तो 1-8 घंटा खेल कर स्कूल का होमवर्क करें। होमवर्क से फारिग होकर रात का खाना खाएं और फिर 1-2 घंटा अपने कोर्स की किताबें पढ़ें और असबाक को दोहराएं। वक्त मुकर्ररा पर नमाज पढ़ें और रात को जल्दी सोएं और अगली सुबह तरोताज़ा बेदार होंगे। इस तरह हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। सबक से मुताल्लिक अहम सवाल और जवाब। सवाल है, वक्त की कदर न करने से क्या नुकसान होता है? वक्त की कदर न करने वाले बहुत पीछे रह जाते हैं, वक्त आगे बढ़ जाता है। जिंदगी में ऐसे लोग बेशतर मामलात में नाकाम हो जाते हैं। नाकामी की बदौलत मायूस, सुस्त और नाकारा हो जाते हैं। जिंदगी में कामयाबी का दारोमदार वक्त के सही इस्तेमाल पर है, इसलिए हर काम वक्त पर करना चाहिए। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए वक्त जो है ना, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत बेशकीमती सरमाया है और इंसान को वक्त की कदर करनी चाहिए ताकि हम आगे चलकर एक कामयाब इंसान बन सके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। खुदा हाफिज़।